record. Okay, so let's begin. So can you see my screen now? Okay, well and good. Acha, today we'll be covering random variables, specifically probability, mass function, probability distribution, CDFs, and expectation and their variances. How to calculate them, and if we tweak the variable, तो किस तरह फिर उसका आंसर आता है. ठीक है? So we won't go into recap like we used to. We'll just get into the questions. ठीक है? Direct questions करते हैं to get a better understanding. So we have a question over here of a discrete random variable. Why is it called discrete random variable? Because it can take some specific values of x. For example, x is equals to 1 or x is equals to 2 and so on. If it would have taken any value of x which is between some value, for example this, so it can have multiple values. This situation is called continuous random variable. Okay. In our case, we have discrete random variable, and it would be usually mentioned in the question as well. So we have a discrete random variable with probability of x this. So this means that we have probability mass function, okay, PMF. We could also write it like this, or write it say it like this. Okay, 2/3x. Say. So what's the probability that x is even? The probability that x is equals to even. So what are the values for even? So probability of x is equals to 2, 4, 6, 8, and it goes on and on till infinite. ठीक है? अच्छा. So it can be probability of x is equals to 2 or x is equals to 4, or we can also use the term union. सही है? Union x is equals to 6, union x is equals to 8, and so on. Acha, now these events are mutually exclusive. Why these events are mutually exclusive? Because in a particular event of x, it can either be 2 or a 4. Say it can't be both, or it can be any element, 1 or 3 or 1 and 2, but it can't be both at the same time. So we can write it like this: x equals to 2 plus probability of x equals to 4 plus probability of x equals 6, and so on. Okay. So star. So what's probability of x equals to 2? It's 2/3 square. Okay, because 3 power x है ना, तो 3 power 2 हो जाएगा, plus probability of x equals to 4, which is 2/3 power 4, plus probability of x equals 6, which is 2/3 power 6, and so on, plus so on. Okay, so we can take common 2/3x square, because ये हर टर्म में आगे की आएगा. ठीक है? So 3 square. ठीक है? अच्छा, this term would become 1 plus this would become 2/3, not 2, sorry, 2 तो हमने common ले लिया, 1/3x square plus 1/3 power 4 plus 1/3 power 6, and so on. ठीक है? Now if we look closely, this converges to a geometric series. See, geometric infinite geometric progression बन जाते हैं. ठीक है? Progression. So the sum of infinite geometric progression, last time मैंने कहा था, and you might know it, it is 1 plus r square and so on. It is a into 1/1 minus r. ठीक है? This converges to be 1/1 minus r. So we can say that 2/3 square into 1/, what's the common factor? What's r over here? R is this thing. सही है? 1/3 square, because जो हर अगली टर्म है वो 1/3 square से मतलब मल्टीप्लाई करके निकल रही है. फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज द टर्म, सो it came out from this. सही है? And so we can say that 1/3 square is the common denominator. ठीक है? If we'll solve it, we'll get, I guess, 1/4. So the probability that x is even is 1/4. ठीक है? Any questions in this question? In this part, कोई सवाल, कोई चीज confusion हो?
नहीं, no questions. Okay, there's someone. No, okay. सही है, चलो let's move ahead now. uh, so now we have a continuous random variable. सही है, a PDF of continuous random variable. So अच्छा, अब if it's continuous so we write PDF, वरना अगर it's discrete तो PMF कहा जाता है. The thing is same but उसकी calculation किस तरह होती है that varies. तो हमें PDF दिया हुआ है. एक सेकेंड. So we need to calculate probability of modulus of x minus 1 over 2 greater than 1/4. ठीक है. अब how we would go about solving this part? Any ideas, any question, any thoughts on it? Okay, so if there are no thoughts, तो we have greater than की साइन. ठीक है. अब greater than में ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो we can convert this greater than की साइन into less than. So how we would do it? We can convert it by taking the complement of it. So can we say it would be 1 minus probability of modulus of x minus 1 over 2 less than 1 less than equals to 1/4. सही है, बिकॉज अब इसका कॉम्प्लीमेंट हमने ले लिया तो 1 में से माइनस भी कर दिया. सही, इट इज द सेम थिंग. सो नाउ इट इज मच इजियर. सो अब यहाँ से हम लेके चलते हैं इसको. 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ. अच्छा, अब व्हेन मॉड्यूलस को हम जब खोलते हैं तो प्लस एंड माइनस की साइन आ जाती है. सो दिस वुड बिकम, ठीक है, -1/4. 1/4. ठीक है. अच्छा, लेस देन इक्वल है या लेस देन है या ग्रेटर देन इक्वल है ग्रेटर देन, इट डजेंट मैटर इन कंटिन्यूस बिकॉज आंसर एक ही आता है. ठीक है. 1 माइनस प्रोबेबिलिटी. अब नाउ 1/2 को हम दोनों जगह शिफ्ट कर देंगे. सो इट वुड बी 1/2 -1/4 लेस देन x लेस देन इक्वल 1/4 प्लस 1/2. ठीक है. सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3/4. ठीक है. अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है एंड इसको 1 में से माइनस कर देनी है. सो हाउ वी वुड कैलकुलेट दिस पार्ट? इंटीग्रेशन से करेंगे, सीडीएफ निकालेंगे. ये सर ने कराया आप लोगों को? So when we need to convert from PDF to CDF, we integrate. Okay, integration use करते हैं हम. एक सेकेंड. नॉट येट. ओके, चले सही है. इस वीक की फिर आई गेस क्लास में हो जाएगा वो. तो व्हेन वी नीड टू कन्वर्ट, अच्छा मैं समझा देता हूँ. पीडीएफ से सीडीएफ जाना होता है देन वी इंटीग्रेट. अगर पीएमएफ से सीडीएफ पे जाने, पीएमएफ इज फॉर डिस्क्रीट. ठीक है. डिस्क्रीट से अगर हमें ना सीडीएफ पे जाना है तो हमें ना ये समेशन यूज करते हैं. तो ये सम ऑल द प्रीवियस वैल्यूज ये करवाई होगी. इंटीग्रेशन नहीं करवाई होगी अभी तक. तो अभी भी हमारे पास पीडीएफ है, हमें सीडीएफ पे जाना है. सो एक्स की है ना दो बाउंड्स हमें पता है, एक 1/4 है एक 3/4 है. सो वी वुड डू के 1 माइनस, सही, ये वाली चीज फर्स्ट बाउंड, सेकेंड बाउंड. ठीक है. एंड पीडीएफ हमारे पास दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सही है. तो 1 माइनस इसको हम सॉल्व करेंगे. सो सॉल्व के लिए सबसे इजी तरीका ये कहना है इसको है ना मल्टीप्लाई कर दो. फॉर एग्जाम्पल इट बिकम 6x इंटीग्रेशन 1/4 और 3/4. अच्छा यार, यहाँ पे थोड़ी स्पेस इशू हो रहा है तो सॉरी. हाँ, तो लेट मी मूव इट अप थोड़ा. ये ना मैं ऊपर ले जाता हूँ. सो इसको हम करेंगे 6x माइनस 6x² इंटीग्रेशन 1/4 से लेके 3/4 तक for dx. So this turns out to be 6x² over 2 minus 6x³ over 3 Power off. 1/4 3/4 and ultimately this turns out to be अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा. एक सेकेंड, लेट मी डू इट डायरेक्टली फ्रॉम द कैलकुलेटर. 3 into 3/4 whole square minus 2 into 3/4 whole cube.
सही है, दिस इज 27/32 माइनस 5/32। ठीक है, तो आर फाइनल आंसर वो बी 1 - 27/32 माइनस 5/32 इज 27 - 5/32, which is 11/16. So our answer is 5/16. सही है, the probability of this is 5/16. ठीक है, any questions? सही है, चलो लेट्स मूव अहेड देन। ठीक है, ओके, ये भी हमारे पास पीडीएफ सीडीएफ वाला क्वेश्चन है। सो लेट एक्स बी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 इज 7/8, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ओके, सो इसमें हमें है ना सी डी एफ, या है ना जो एक्स ग्रेटर देन एक्स। अच्छा, इफ यू वांट टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये है ना, मैं अगेन सी डी एफ है ना सर्वाइवल फंक्शन का बताता हूँ। पीडीएफ हमारे दिया हुआ है, ठीक है। अब वी नीड टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन सम वैल्यू एक्स। ठीक है, दिस इज सम वैल्यू ऑफ एक्स, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी एनीथिंग। सो इसको अगर हमें निकालना है, मैंने एक्स इसलिए चूज किया बिकॉज मैं एक जेनेरिक टर्म निकालना चाहता हूँ। तो इसका जो आंसर आएगा, इसमें मैं अगर 1 प्लग इन कर दूंगा तो इट वुड गिव आंसर फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1। 2 प्लग इन कर सकता हूँ, 3 प्लग इन कर सकता हूँ, एंड सो ऑन। तो जेनेरिकली अगर हमें इस तरह निकालना है, तो इट्स ग्रेटर देन की साइन ना, तो इट वुड स्टार्ट फ्रॉम एक्स एंड अपर बाउंड तक जाएगा। अपर बाउंड इसकी क्या है, थीटा। ठीक है, 3x² ओवर थीटा क्यूब, विच इज द पीडीएफ, एंड इसको हम थीटा से वो करेंगे। सही है। अच्छा, अगर हमें निकाले तो हम है ना लोअर बाउंड देखेंगे। तो लोअर बाउंड के लिए हमारे पास है ना लेस देन एक्स है ना, तो ऊपर एक्स आ जाएगा, एंड नीचे लोअर बाउंड में हमारे पास क्या है, 0 है, 0। एंड यहाँ पे हम पीडीएफ लिखेंगे, पीडीएफ को हम इस तरह लिख लेते हैं। सही है, एंड डी एक्स। ठीक है, ये आप खुद सॉल्व करना। ये आपका सी डी एफ का फंक्शन हो गया, इसको हम कहते हैं सर्वाइवल फंक्शन। ठीक है, और इन दोनों का लिंक ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू एक्स प्लस पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये इसके इन दोनों के बीच का लिंक है। तो हमारे पास ये दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 दी हुई है, इक्वल्स टू 7/8। तो इसका मतलब है कि है ना 1 से लेके कहाँ तक, थीटा तक जा रही है वैल्यूज, बिकॉज हमें थीटा की वैल्यू दी हुई नहीं है। सही है, ये सॉरी ये एक्स के फॉर्म में होगा। सही है, नॉट थीटा, थीटा में बस कांस्टेंट है। 3x² ओवर थीटा क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू 7/8। ये जब हम सॉल्व करेंगे तो थीटा के टर्म्स में आंसर आएगा, एंड इसको हम 7/8 से इक्वेट कर देंगे, तो देयर विल बी वन अननोन विच इज थीटा, एंड फाइनली हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। सो अगर सॉल्व करते हैं तो ये क्यूब हो जाएगा, ये 3 थीटा क्यूब हो जाएगा, क्योंकि है ना जब इंटीग्रेशन करते हैं तो एक पावर प्लस हो जाती है और डिवाइड में आ जाती है। तो ये एंड इसकी बाउंड हो जाएगी 1 से थीटा तक, थ्री थ्री कैंसल आउट। सही है, तो थीटा क्यूब ये क्या हो रहा है, हाँ सही है, थीटा क्यूब ओवर थीटा क्यूब माइनस 1 ओवर थीटा क्यूब इज इक्वल टू 7/8। सही है, सो 1 - 1 ओवर थीटा क्यूब इज इक्वल टू 7/8। तो 1/8 इक्वल्स 1 ओवर थीटा क्यूब। अब इसको थोड़ा मैनिपुलेट करें तो थीटा कम्स आउट टू बी 2। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? अच्छा, हम्म, नो ऑल गुड, ओके ऑल गुड, सही है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी है ना काइंड ऑफ सिमिलर ही है। वी हैव सही लॉस ड्यू टू फायर, सही लॉस फंक्शन एक दिया हुआ है हमारे पास एक्स के टर्म्स में। अब हमें निकालनी है व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट अ फायर लॉस एक्सीड्स 8। अच्छा सही, गिवन दैट फायर लॉस एक्सीड्स 8, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट इट एक्सीड्स 16। सो एक कंडीशनल दी हुई है हमें। सो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी क्या है, इस ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सही है, एक्स ग्रेटर देन 16, गिवन क्या है, ये पार्ट, गिवन एक्स इज ग्रेटर देन 8। ठीक है, अब इसमें बेस रूल लगाएंगे या इसको सिर्फ एक्सपेंड कर देंगे, तो इट टर्न्स आउट टू बी एक्स ग्रेटर देन 16 इंटरसेक्शन एक्स ग्रेटर देन 8
ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 8। ठीक है। अब x ग्रेटर देन 16 इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन 8 को मैं सिर्फ इस तरह लिख सकता हूँ, x greater than 16, because if it's greater than 16 तो it's definitely true कि it would be greater than 8। ठीक है, इस तरह, बिकॉज 16 जो है मतलब 8 बड़ा सेट है एंड 16 उसके अंदर छोटा वाला सेट है। ठीक है, तो अगर 16 से बड़ी है इंटरसेक्शन 8 से बड़ी है का मतलब है कि 16 से बड़ी है। ठीक है, ये वाला पार्ट हम लोग इग्नोर कर लेंगे। तो अब ये अगेन निकालना आसान है। ठीक है, ग्रेटर देन 16 का मतलब है इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना होगा फ्रॉम 16 टू द अपर बाउंड। सही है, और वी कैन अगेन फर्स्ट कैलकुलेट द जेनेरिक फंक्शन। ठीक है, एक्स से लेके 20 जो आपकी पीडीएफ है। सही है, इसका जो भी आंसर आएगा, अगर यहाँ पे 16 रखेंगे आप तो ये 16 के लिए आ जाएगा, 16 से 20 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सही है, एंड अगर 8 रखेंगे तो ये 8 के लिए आ जाएगा। ये देन वी वुड प्लग इन द वैल्यू एंड आंसर हमारे पास इजीली आ जाएगा। सही है, सो आई थिंक ये आप लोग खुद सॉल्व कर लेना, ये हो जाएगा आप लोगों से। मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ। अच्छा, दिस क्वेश्चन इज अबाउट एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस। So there's a recent study which indicates that the annual cost of maintaining and repairing a car in a town in Ontario is average is 200. So expect, समझो हम लोग x को है ना रिपेयर कॉस्ट ले लेते हैं, तो हमारे पास एवरेज क्या दिया हुआ है 200। सो एक्सपेक्टेशन हमें दी हुई है 200 की। एक्सपेक्टेशन इज द मीन वैल्यू, इज द एवरेज, इज द नॉट द मीडियन बट हाँ सही है, मीन एंड एवरेज। एंड वेरिएंस हमें दिया हुआ है कितना 260। if if a tax of $20 or 20% is introduced on all item associated with the maintenance and repair of car, that is everything is made 20% more expensive, what will be the variance of the annual cost of maintaining and repairing a car? वेरिएंस भी निकाल लेते, एक्सपेक्टेड वैल्यू भी निकाल लेंगे। ठीक है, अब उसने बोला है एक नया वेरिएबल है y। ठीक है, y को हम इस तरह कह सकते हैं कि है ना इट्स 20% मोर देन x, सो कैन वी से इट इज 1.2 टाइम्स x टाइम्स, ठीक है ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1.2x कह दें समझो। ठीक है, क्योंकि अब 20% हमारे पास चीजें ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई है, पहले 100% थी, अब 1.2 से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, इज इट क्लियर कि ये कैसे आया? हम्म, सही है। अच्छा, so now we need to find expectation of y and variance of y। सही है, अब एक्सपेक्टेशन ऑफ y हम इस तरह निकालेंगे, y की जगह हम ये वाली इक्वेशन में ना ये चीज इनपुट कर देंगे 1.2x। एंड वेरिएंस ऑफ y क्या होगा 1.2x। सही है, y को हमने बस सब्स्टिट्यूट कर दिया विथ इट्स इक्विवेलेंट राइट हैंड साइड। अब हमारे पास एक थ्योरम है ना, एक लॉ ये कहता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू ए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस बी। सही है, एंड सॉरी वेरियंस ए एक्स प्लस बी इक्वेट्स टू ए स्क्वायर वेरियंस ऑफ बी, ए स्क्वायर वेरियंस ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये a and b are constants over here, x is a random variable, it can be any random variable। सही है, if we multiply a random variable with a, its expectation would be a ex। ठीक है, and if we add another constant b, it would be plus b। अब इसको आप इस तरह समझें कि हमारे पास अगर एक समझे क्विज होता है, क्विज में मीन इज 9। अब बाद में आफ्टर सम टाइम समवन रियलाइजेस या टीए रियलाइजेस कि ना सबका एक क्वेश्चन हमने गलत किया है एंड एवरीवन नीड्स एन इंक्रीज ऑफ मार्क। ठीक है, सबका एक एक मार्क बढ़ाना पड़ेगा, तो हमारा जो मीन होगा वो क्या होगा, वो एक मार्क से बढ़ जाएगा। ठीक है, इफ मीन इज 9, अब मीन 10 हो जाएगा इफ हम सबका एक एक मार्क बढ़ा दें। ठीक है, सो समझो हमने अगर बी डाला है तो बी एड ऑन होगा, लेकिन क्या ये चीज वेरिएंस पे असर करेगी?
वो क्वेश्चन वाली बात है। वेरिएंस पे असर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि देखें पहले सबके है ना, पहले जो भी है ना डिविएशन थी ना, द डिविएशन वोंट चेंज इफ वी ऐड अनदर मार्क या इफ वी सब्ट्रैक्ट एनी अदर मार्क फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? सही, वेरिएशन रिमेन्स द सेम बट एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। सही, कांस्टेंट्स अगर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, बट अगर हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सपेक्टेशन उसने से ही बढ़ेगी लेकिन वेरिएंस उसके स्क्वायर से बढ़ेगी। सो इन दिस केस एक्सपेक्टेशन ऑफ, इसको फिर हम इस तरह लिख सकते हैं 1.2 एक्सपेक्ट मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ठीक है, विच टर्न्स आउट टू 1.2 इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज 200 एंड दिस टर्न्स आउट टू बी 240, ठीक है। एंड वेरिएंस ऑफ एक्स ऑन द अदर हैंड वुड बी 1.2 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है। 1.2 स्क्वायर इज आई गेस 1.44 इनटू वेरिएंस करेंगे तो सब, और वेरिएंस ऑफ एक्स हमें दी भी ऑलरेडी 260, सो दिस टर्न्स आउट टू बी 374.4। तो हमारा आंसर होगा ये ई पार्ट। सही है। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? अगर हमें दिया हुआ है एक्सपेक्टेशन ऑफ, समझे, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर एंड वी नो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, तो हम इसको इस तरह निकालते हैं ए प्लस एक्स बी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस सी इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ए कांस्टेंट है, सही है, बी भी हमारे पास कांस्टेंट, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पता होगी, सी भी हमारे पास पता होगा, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, इट्स बेसिकली जब हम वेरिएंस निकालते हैं ना, एक सेकेंड मोड हम यूज करते हैं ये वाला, माइनस ई एक्स होल स्क्वायर होता है ना, तो ये जो हम यूज करते हैं ना, दिस इज दिस थिंग, सही है। डोंट, मतलब स्क्वायर को एक्स को मल्टी स्क्वायर करके इसको मल्टीप्लाई नहीं कर देना, ये अब आगे पढ़ेंगे ये वाली चीज हम, इसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं, बट टिल हियर इट इज इट क्लियर नाउ? Why do we multiply variance by a square यार? Why do we do it? I don't know, but it's the theorem. इन वेरिएशन है ना, इंक्रीज हो जाती है हल्के से भी कांस्टेंट के इफेक्ट से, तो अगर थोड़ा सा भी इफेक्ट हम डालते हैं, थोड़ा से भी अगर हम इसको साइंस की टर्म में बोलते हैं, आई डोंट रिमेम्बर द टर्म, बट उससे ना वेरिएशन है ना काफी इंक्रीज हो जाती है, वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है बेसिकली, तो तभी हम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। सही है। सो दिस इज द एंड ऑफ ट्यूटोरियल। अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन स्टे अहेड, बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।